सो अच्छा कलाम सुनाने वाली दुनिया बड़ी है और अच्छा सुनने वाले लोग भी बहुत हैं, पर ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਉੱਤਮ ਤਾਲੀਮ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਆਲਾ ਤਾਲੀਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਤਾਲੀਮ ਕਿਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਤਾਲੀਮ ਆਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤਾਲੀਮ ਖਾਸ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋਲਣਾ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਆ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਨਿਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਨਿਆਏ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਬਾਹਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਬਾਹਰਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਬੜੀ ਅਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਣਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਅੰਨੇ ਫਰੀਸੀਓ, ਪਹਿਲੇ ਕਟੋਰੇ ਅਰ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਂਜੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। हालेलुया। हिंदी में क्या लगा? हे अंधे फरीसियों, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज के वह बाहर से भी स्वच्छ हो। दोनों इक्को जे चाहिए है। हालेलुया। अंदरों भी ते कई लोग दावा कर देंगे ना, असि अंदरों बहुत वधिया है जी, मेरा दिल बड़ा साफ है, असि बिल्कुल वधिया चलते हैं जी, एवं तुसीं सानूं बाहरों ना देखो। ते जिहड़ा अंदर यीशु मसीह कहंदा भरिया ना, ओहो ही बाहर होना है। हालेलुया। अंदर अगर सादगी आ तो उन्हें उभर के बाहर आना है। ते जे अंदर चाह है ना फैशन का, तो फिर वो ये हो नहीं सकता भी वो चाह जिहड़ा अंदर ही रह जाए, उन्हें उभर के फिर की करना है। असं चेहरा देख के दस देते ना, अज यार बड़ा उदास जिहा लगदा, सानू किदां पता लग जाता भला? असल विच चेहरा उदास नहीं हुंदा। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਬਦਲਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਭਲਾ? ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਸੀ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਆ। ਜੈਸਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼। ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਦੱਸਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਵਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੌ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਕੁਛ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਹਕੀਮ ਨਬਜ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਬਜ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਚੰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਰਾ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਣਾ,
ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਕਲਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਬੈਠਾ है। हालेलुया। सो आगे लिखा है, कपटियों, शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हुई है। किदां दी तुलना कर रहा है पर यीशु मसीह किहनां दी तुलना कर रहा है? शास्त्रियां दी, फरीसियां दी, यानी कि उस समय दे पंडित लोकां दी, ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਸਟਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚੋਗੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਬਟਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਨੇ ਹੀ ਬਟਨ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਕਾਹਦਾ? ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਾਪ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਾਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ ਭਲਾ? ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਨੇ ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਆ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕਿਆ। ਕੌਣ ਲਟਕਿਆ ਸੀ ਭਲਾ? ਪਾਪ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਟਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਨਿਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਫ਼ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ, तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करता है? कोई है? डाकू कह रहा है सलीब पे लटका होया, हमने तो जो कुछ किया उसकी सजा पा रहे हैं परंतु ये बेगुनाह है। पिलातूस कह रहा है, मैंने इसमें ऐसी कोई बात नहीं देखी जिसके कारण मैं इसे सजाए मौत दे सकूं। यूहन्ना अपने खत में लिखता है कि वो बेगुनाह था। अब हम ये विचार करें कि यदि वो बेगुनाह था तो बेगुनाह पर यदि परमेश्वर सजा लाए तो वो फिर न्यायी परमेश्वर हो सकता? वो तो फिर अन्यायी परमेश्वर है। तो यदि वो अन्यायी है तो फिर उसको मानने का भी कोई अर्थ बनता नहीं। हालेलुया। इसलिए कलाम को जब भी सुनते हैं तो पूरी गहराई से सुनना है, पूरा मन लगाकर सुनना है। सिर के ऊपर से उसे जाने देना नहीं है, दिल की गहराइयों तक बसना चाहिए, तभी तो हम उसके अनुसार काम कर सकते हैं। यदि कलाम सुना ही नहीं है ध्यान से तो फिर हम उसके अनुसार काम भी कर सकते हैं। हालेलुया। सो विचार करेंगे कि खुदावंद खुदा का कलाम बताता है कि यीशु मसीह शास्त्रियों से और फरीसियों से बात कर रहा था। हालेलुया। भाई जाग जाओ, छोटे छोटे मारो। हालेलुया। यीशु मसीह फकीयों से और फरीसियों से बात कर रहा है। फकीयों और फरीसियों से बात करने का अर्थ क्या था यीशु मसीह का? ताकि वो लोग जो उनके चंगुल में पड़े हुए थे उन्हें उनसे आजाद करवाना था। वो दिखावे का ढोंग रचाकर लोगों को गुमराह कर रहे थे। वो बाहरी तौर पर पूरे संत नजर आते थे परंतु अंदर से वैसे नजर
आते नहीं थे। अब लोगों को तो बाहर से देखना था, तो लोगों को बाहर से संत नजर आते थे, परंतु यीशु मसीह उनके अंदर की बात को देख रहा है। तो क्या मिसाल दे रहा है? तुम उस कब्र की मानद हो जो बाहर से तो सफेदी फेरी हुई है, परंतु अंदर हड्डियों से और गंदगी से भरी हुई है। ऐसी तुलना कर रहा है। और यीशु मसीह कोई भी उनका लिहाज भी कर रहा नहीं है कि मैं इनके साथ अच्छी अच्छी बातें करूं तो ये मेरे साथ सहमत हो जाए। आज समझौता क्या हो गया है चर्चों में कि हम लोग कलीसिया से समझौता कर लिया, गुस्सा ना कर ले किते इन्हों कही है ना कुछ भी, जिन्हें गुस्सा कर लिया आना नहीं ते ना आवे। हालेलुया। जिन्हें चर्च च आके खुदा दा कलाम सुन के गुस्सा करना है, ਉਹਦਾ ਤੇ मतलब नहीं बनता भी वो चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਘਰੇ ਹੀ ਰਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੇਡ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਉੱਨ ਕੁਤਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ। लेकिन जिन्हें सेवकाई करनी है उन्हें कोई लिहाज करना, उन्हें कोई मतलब नहीं, कोई आवे ते भावें ना आवे। क्यों नहीं मतलब? क्योंकि कलाम दसदा है, यीशु मसीह कहंदा कोई मेरे कोल नहीं आ सकदा अगर मेरा बाप उन्हें मेरे कोल लैके। इसे सब तो खास गल अज की है कि असी नहीं चुनिया यीशु मसीह नूं। हालेलुया। भलेखा अज इंसान का यही होया कि शायद असी यीशु मसीह नूं मन के उत्ते बहुत वड्डा, हमने नहीं चुना, यीशु ने हमें चुना है। हालेलुया। हम चुन सकते भी नहीं थे, उसने चुना है। अब जो चुने हुए हैं वो आएंगे, जिनको बचाना है वो उसकी आवाज सुनेंगे और आएंगे। अब बदकिस्मती कहां पर होगी? जानवर यीशु मसीह की आवाज को सुनता है, लेकिन वो उसके रूप और स्वरूप पर बना नहीं, उसकी छवि पर तैयार नहीं हुआ। लेकिन जानवर यीशु मसीह की आवाज को सुनता है। मछली को हुक्म दिया कि यूना नबी को अपने पेट में निगल जा। निगलना है खाना, ऐसे तो खा जाना सी ना। हाँ जी। मछली को क्या हुक्म हुआ कि तू निगल जा। मछली ने हुक्म को माना और मछली ने उसको निगल लिया। अब मछली अगला हुक्म पूछ रही है कि अगला हुक्म क्या है? तो खुदा क्या कह रहा है? इसको जाकर वहीं पर पटक दे जहां ये जाना चाहता नहीं था। हालेलुया। ये तरशीश की और भागा था, इसे नीनवा की तरफ लेकर जा और वहीं पर जाकर इसे अपने मुंह से निकाल दे, ताकि इसे पता चले कि जब मैं लेकर जाता हूं तो कोई इनकार कर सकता भी। हालेलुया। अब ले जाने वाला भी परमेश्वर है। जहां ले जाना चाहता है वहां ले जा ही बस करेगा, छोड़ेगा नहीं। मछली हुक्म को मान रही है, नबी हुक्म के उलट शराप देने के लिए जा रहा है, अपनी ही कौम को गदी हुक्म को मान रही है। हालेलुया। कितनी बदनसीबी है। और अब अजूब की किताब में क्या लिखा है 12 अध्याय में? इंसान को अकल तब आएगी जब गधे का बच्चा आदमी बनकर पैदा हो। कदा होगी अकल? भला ये कहना ना मैं बड़ा सियाना है, मैनू बड़ी अकल है, ते तुलना यदि किहदे नाल हो रही है? लिखा इंसान नू उदों अकल आऊगी जदों गधे दा, यानी गधे नूं असीं बिल्कुल कहने मैनू अकल है नहीं, जिथे खड़ गया इन्हें हटना नहीं है, बेअकल आया, इनू कोई भी समझ नहीं है। उस गधे दे नाल तुलना कीती गई इंसान दी जिहड़ा परमेश्वर दी छवि दे उत्ते है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ तुलना करके दस्या गया कि इनू अकल उदों आनी है जदों गधे का बच्चा इंसान बन के पैदा होगा। फिर ये समझ सकूगा भी शायद मैं किते गलत सी, नहीं तो इनू अकल आनी नहीं है। सो गधी को फरिश्ता नजर आ रहा है, नबी को फरिश्ता नजर आ गधी को आ रहा है, नबी को नहीं आ रहा है। इसका मतलब नबी से गधी उत्तम ठहरी। नीनवा खुदा की हुक्म के मुताबिक यूना ने जाना था नीनवा को, लेकिन वो खुदा के हुक्म को मानना चाहता नहीं है और तरशीश की तरफ भाग रहा है। मछली ने हुक्म को माना और जहां खुदा ने कहा वहीं पर जाकर पलटा उसको। हालेलुया। यीशु मसीह से उन्होंने कहा कि तुझको भी टैक्स देना चाहिए, तो यीशु मसीह ने कहा कि जाओ कुंडी डालो, मछली आएगी, उसके मुंह से पैसा निकाल कर तुम मेरा टैक्स भर दो।
अब मछली जो है वो हुक्म को मान रही है, अपने मुंह से वो पैसा दे रही है। हालेलुया। जानवर हुक्म को मानता है। खुदा ने कहा मैं सब कुछ नाश कर दूंगा, तू किश्ती बना। नूहा ने पहाड़ पर किश्ती बनानी शुरू की। लोग कह रहे थे दिमाग खराब हो गया इसका, लोग पानी के पास किश्ती बनाते हैं, ये पहाड़ के ऊपर किश्ती बना रहा है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये पागल हो गया है। लेकिन नूहा जानता था खुदा क्या करने वाला है। हालेलुया। पहाड़ पर किश्ती मुकम्मल हुई और जब पानी के साथ दुनिया को तबाह करना था, हर एक जीव जंतु ने, चाहे वो रेंगने वाला हो, चाहे वो चलने वाला हो, चाहे वो उड़ने वाला हो, हर एक जीव जंतु ने परमेश्वर के शब्द को सुना। उनको कोई लेने नहीं गया, वो परमेश्वर का शब्द सुना और अपने आप किश्ती के अंदर आकर बैठ गए। अब जिसको अपनी छवि पर बनाया था उनमें कोई भी आया, जब तक पानी में डूबने नहीं लगे तब तक वो किश्ती की तरफ भागे नहीं। जब समय था तब तो उन्होंने अंदर के इंसान की आवाज को सुना। जब समय निकल गया और मजबूरी क्या थी कि किश्ती को खुदावंद ने कहा बनाना तूने दरवाजा लगाना, लेकिन बाहर कुंडी, बाहर नहीं कुंडी लगानी। कुंडी कहां पे लगानी बोला? अंदर कुंडी होगी। ऐसा ही लिखा है बोले। हाँ जी। अब समस्या क्या है? ना तो अंदर कुंडी है ना ही दरवाजा जरूर बनाना है। ये दुनिया का पहला दरवाजा था जिसको कुंडी लगाई, कुंडी नहीं लगाएगी। खुदावंद ने कहा कि सब कुछ मुकम्मल जब हो जाएगा, दरवाजा तू नहीं, दरवाजा मैं बंद करूंगा। अब यदि अंदर कुंडी लग गई होती तो नूहा में तरस आ जाना, धर्मी था ना, तो तरस से भर जाना था और कुंडी खोल देनी थी। परंतु अब जब लोग आकर आवाजें दे रहे हैं तो नूहा क्या कह रहा है? यदि मैंने दरवाजा बंद किया होता तो मैं जरूर खोल देता, परंतु ये दरवाजा मैंने नहीं, खुदा ने बंद किया है। अभी हमारे पास समय है इससे पहले कि खुदा हमारे लिए दरवाजे को बंद कर दे, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं कि हम उसकी आवाज को सुने। अभी इससे पहले कि वो समय आ जाए, जैसे लिखा है रोमियो के खत में कि जैसे परमेश्वर को अपनी पहचान में रखना उनको अच्छा नहीं लगा, वैसे ही परमेश्वर ने भी उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। ऐसा समय आ जाए कि परमेश्वर हमारी बुद्धि को भ्रष्ट ही कर दे और फिर हमारे लिए नाश के सिवा और कुछ ना हो। अभी समय है, दरवाजा खुला है। जैसे जानवर उसकी आवाज को सुनकर आ रहे हैं, वैसे ही हम भी आ जाएं। ये अंदर का इंसान जो है ना, ये सारी बातें समझाएगा। बाहर का इंसान आपको बाहरी दुनिया के साथ मिलाकर रखेगा। इसलिए पौलुस लिखता है मेरी बाहर की इंसानियत जो है वो दिन प्रतिदिन नाश होती जाती है, परंतु अंदर की इंसानियत दिन प्रतिदिन दृढ़ होती जा रही है। हालेलुया। तो अंदर की इंसानियत को दृढ़ करने के लिए यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। अंदर के इंसान को मजबूत करना है। जब अंदर का इंसान मजबूत होगा तो सिवाय पाक रूह के हम फिर कोई आवाज सुन सकते, फिर पाक रूह की ही आवाज सुनेंगे, फिर वो हमारी जिंदगी में शब्द पूरा होगा। जितने पाक रूह के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं, वही परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। अब दूसरा काम क्या हुआ? बाहरी लोगों का स्वभाव चेंज नहीं हुआ जब तक पानी नहीं आया। हालेलुया। शेर श्राप के बाद हमला करने वाला बन गया था, परंतु जब वो किश्ती के अंदर पांव रखा उसका स्वभाव क्या हो गया? भला बदल गया, स्वभाव बदल गया। सांप डंक मारता था लेकिन अब उसका स्वभाव जो है वो बदल गया है। कोई भी जानवर जो खूंखार जानवर है उसका पूरे का पूरा नेचर जो था वो जैसे ही किश्ती के अंदर आया वो सब कुछ बदल गया। अब हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह की नाव में सवार हैं, तो फिर हमारा स्वभाव क्यों नहीं बना? इसलिए तो लिखा कि गधे के बच्चा जब इंसान बनकर पैदा होगा ना तब तुझे अकल आएगी। जानवरों का स्वभाव बदल गया अंदर आकर किश्ती के, परंतु यीशु की किश्ती में सवार होकर हमारा स्वभाव बदला। यीशु सवार है ना, तो किश्ती डूबने लगी तो यीशु तो साथ ही डूबेगा ना। अब फिक्र किस बात का है? क्यों कह रहे हो कि हे यीशु नासरी हमें बचा?
इस सृष्टि को बनाने वाला जब नहीं मरेगा उस किस्ती में, तो तुम कैसे मर सकते हो? तो अंदर का इंसान जो है वो मजबूत करना जरूरी है। जितने वो मजबूत नहीं होता उतनी देर क्या लिखा है, तू यीशु के साथ ही था ना। पतरस क्या बोल रहा, मैं नहीं। फिर दूसरी बार पर तू यीशु के साथ ही था, बोलता मैं बिल्कुल भी नहीं था, मैं उसे जानता भी नहीं हूं। फिर तीसरी बार पूछा, नहीं तू यीशु के साथ था, और फिर गालियां निकालनी शुरू कि मैं उस आदमी को जानता ही नहीं हूं। बाहरी इंसान जो है वो प्रभावित हो रहा है, लेकिन जब अंदर का इंसान मजबूत हुआ, फिर वही पतरस जो है वो बोलता, मेरे यीशु को तुमने सीधा लटकाया था, अब मुझे उल्टा करके लटका दो। हालेलुया। ये अंदर का इंसान जो है ये फैसले लेगा, बाहर का इंसान कभी भी हमको फैसले लेने देगा नहीं। और ये लोग जो थे, जो बाहर से बड़े अच्छे थे, लेकिन यीशु मसीह ने तुलना किसके साथ की है, तुम उस कब्र की मानिंद हो जो अंदर से हड्डियों से भरी हुई है। बाहर से तुम लोगों को तो गुमराह कर सकते हो, परंतु मुझे गुमराह कर सकते नहीं है। सैमुअल मसा करने के लिए गया जब राजा इस्राएल के दूसरा, तो वो बाहरी तौर से देख रहा है। जब वो 8.5-9 फुट का जवान उसके सामने पेश किया गया, तो सैमुअल नबी जो था वो देखकर खुश हो गया और अपने मन में विचार करने लगा, यही हो सकता है वो जिसको खुदा ने इस्राएल का बादशाह बनने के लिए चुना है। तो खुदा की आवाज उस तक पहुंची, तू इसके बाहरी रूप को मत देख। तू बाहर से देखकर खुश हो रहा है, परंतु मैं इसे अंदर से जानता हूं। बाहर से ये बहुत तगड़ा नजर आ रहा है, लेकिन अंदर से ये बहुत कमजोर है। और वो फिर साबित हुआ आगे जाकर, जब गोलियत फिलिस्ती 40 दिन तक ललकारता रहा कि तुम में से कोई योद्धा बाहर निकले, यदि वो मुझको युद्ध में हरा दे तो हम सभी तुम लोगों के गुलाम ठहरेंगे। ये उन्हीं में थे। कोई भी हिम्मत कर पाया? कोई हिम्मत नहीं कर पाया कि गोलियत का मुकाबला कर सके। तो खुदा ने कहा, तू बाहरी तौर पर देखता है, मैं अंदर से देखता हूं। अंदर से ये कमजोर है। जब दाऊद को देखा होगा सैमुअल नबी ने, तो उसके बाहरी रूप को देखकर अगर इंसान की तरह सोचे तो एक पल के लिए खुदा पर भी शक हुआ होगा। अगर इंसानी विचार से तुलना करें तो वो सोचो खुदा कैसा है, इतने तगड़े आदमी को इसने ठुकरा दिया, और एक बच्चा जो है उसको बोला कि इसे मसा कर इस्राएल का बादशाह होने के लिए। तो अब क्लियर कब हुआ? जब गोलियत ललकार रहा है, वो लोग छुपे हुए हैं, 40 दिन तक ललकारता रहा। बाप ने कहा, जा अपने भाइयों की सुख शांत पूछ कर आ, जिंदा भी हैं कि नहीं। वो दाऊद अपने भाइयों के बारे में जब पता करने आता है, तो वो दाऊद को क्या कह रहे हैं, हमें पता है तू पता करने कुछ नहीं आया, तू सिर्फ ये देखने आया है कि युद्ध कैसे चल रहा है, जा जहां से तू भाग जा। अभी वो बातें कर रहे थे, वो गोलियत ने फिर आकर ललकारा कि निकालो कोई योद्धा जो मुझसे युद्ध करे। जैसे ही दाऊद के कानों में वो आवाज पड़ी, दाऊद का अंदर का इंसान जो था वो गैरतमंद था। उसने कहा, खुदा की कौम को एक फिलिस्ती ललकारे और तुम लोग छुप कर बैठे हुए हो। ये बात जब सैमुअल नबी तक पहुंची होगी, तब उसे पता चला होगा खुदा का कभी भी किया हुआ फैसला गलत हो सकता नहीं है। तो उसने कहा कि एक फिलिस्ती, एक असुन्नती इंसान खुदा की प्रजा को ललकारा है और तुम लोग छुप कर बैठे हुए हो, लानत है तुम लोगों पर। गैरत नहीं है तुम लोगों के अंदर, अंदर का इंसान मजबूत नहीं है। अब वो बच्चा है, तो उसने कहा, उधर से आवाज आ गई कि बादशाह ने कहा, जो इसको हरा देगा मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ करूंगा। तो उसने कहा, जाओ बादशाह को जाकर बोलो मैं इसे हरा सकता हूं। हालेलुया। अब बाहरी तौर पर तो बहुत कमजोर है, हालेलुया, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत है। आज नया रिवाज चल पड़ा है कलीसिया में, सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी, एड्स से भी खतरनाक बीमारी क्या आ चुकी है, पुलपट पर आते ही बड़े व्याकुल, जैसे ही आते हैं कलाम शेयर करना शुरू करते हैं, शरीर कांपने लगता है, आवाज बुलंद हो जाती है। हालेलुया। जैसे ही पुलपट छोड़कर जाते हैं, पादरी भी नजर आते हैं, फिर सब कुछ बदल जाता है। ये बड़ी खतरनाक बीमारी, आज इसके लिए भी दुआ करने की जरूरत है।
और देखने वाले लोग जो है वो बाहरी तौर पर क्या देखते हैं, यार बड़ा मसा था इस आदमी को, जब से शुरू किया अंत तक एक पल के लिए भी टिका, पंजाबी कह रहे भड़थू पा के रखे। हाँ जी, आत्मा को भड़थू पाने की जरूरत है। हाँ जी, भाई साहब ने क्या बताया था, कैलिफोर्निया की बात है, जुब्बा सिटी में एक प्रोग्राम चल रहा था, वहां पर भी एक ऐसा ही खादम आया था। तो भाई ने पूछा उनको कि कैसा लगा, वो बोलते हैं हमको तो ऐसा लगा जैसे शुरली को आग लगा के छोड़ते हैं ना, तो श्श करते हैं फिर ठुस। तो बोलते ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई आवाज सी निकलती है, बाद में पता नहीं चलता कहां पर चलेगी। ये बीमारी है, क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना, अपने आप को पेश कर रहे हैं, खुदा को पेश करते। खुदा का कलाम तो संजीदगी का कलाम है, इसे उछल कूद कर सुनाने की जरूरत है। बाहरी तौर पर मत दिखाओ कि हम धर्मी हैं, जब उसके कलाम को पेश करोगे तो शब्द बता देंगे तेरी अपनी समझ के हैं या उसकी मर्जी के हैं। हालेलुया। तो आज ये बीमारी नहीं चली है, इसके लिए दुआ किया करो, लोग इस बीमारी से बचे रहें। तो अब सैमुअल नबी तक भी तो ये बात पहुंची होगी ना, तो विचार किया होगा उसने, खुदा का फैसला गलत हो सकता नहीं है। राजा के सामने ले गए उसको, राजा भी बाहरी तौर पर देखकर एक बार तो हंस पड़ा होगा कि ये क्या है यार, किसको ले आए। लेकिन अब वो कह रहा है कि मेरे बाहरी व्यक्तित्व को तुम मत देखो, मुझको बाहरी तौर पर मत देखो, ये देखो कि मैं एक आदड़ी हूं, एक चरवाहा हूं मैं, और आम चरवाहा नहीं, एक वफादार चरवाहा। हालेलुया। और कैसा चरवाहा? बोलता है कि मेरे उस झुंड में एक बार एक शेर एक बच्चे को उठाकर ले गया, मैंने उसका पीछा किया, उसको जबड़े से पकड़ा और उसको चीर डाला, और उसके मुंह से मैंने उसे जिंदा छुड़ाया। कैसा छुड़ाया जी भला? आज हमारी जिम्मेवारी भला क्या है? साढ़े को मरिया नहीं छुड़ा के लिया, असि किरण मारी गया, छो जी। तो एक चौराहे की जिम्मेवारी क्या है? बघियाड़ के मुंह से जिंदा छुड़ाना है, पाप में फंसे हुए इंसान को जिंदा छुड़ाना है। हालेलुया। तो वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मैंने जिंदा छुड़ाया। फिर बोलता है एक भालू आया, वो भी ऐसे ही उसने हरकत की, मैंने उसको भी मार डाला और अपने बच्चे को छुड़ा लिया। एक वफादार चरवाहा हूं मैं, और जिंदा यहोवा की कसम है मुझे, खुदा की कसम, ये असुनती फिलिस्ती भी उनमें से मेरे सामने एक जैसा ही है। हालेलुया। अब ये लोग उसके बाहरी तौर को देखकर डर रहे हैं। जितना इस्राएल था, उस इंसान के कद को देखकर, उसकी शक्ति को देखकर, उसकी ताकत को देखकर डर रहा था। उसका जब वेरवा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उसका ढाल उठाने वाला उसके आगे आगे चलता था। वो ढाल का वजन जो था ना, आम इंसान उसको उठा ही नहीं सकता था। उसकी तलवार का भार इतना था कि उसको आम इंसान उठा भी सकता नहीं था। और दाऊद अब कह रहा है कि मैं उसके साथ युद्ध कर सकता हूं। क्यों? अंदर का इंसान जो है वो मजबूत है। हालेलुया। आज काम कोई भी करो, चाहे वो रिलीजियस हो या वो दुनियावी तरीके का हो, फतह उसी वक्त मिलती है जब अंदर का इंसान मजबूत होता है। हालेलुया। यदि अंदर का मजबूत है तो फिर हार सकते नहीं है, यदि अंदर का मजबूत नहीं है तो फिर शुरू करने से पहले ही हार सामने आ जाती है। तो अब दाऊद ने इजाजत पाई तो बोलता इसको वस्त्र वगैरह पहनाओ। बोलता क्या फायदा वस्त्रों का, इनको पहनकर तो मैं चल फिर भी सकता नहीं हूं। तो बोलते, फिर बोलता मैं तो ऐसे ही जाऊंगा। जब मैं शेर के पीछे गया था तो वर्दी पहनकर गया, जब मैं बालू की तरफ बढ़ा था तो मैंने कोई अपनी सेफ्टी के लिए कुछ भी पहना, उनके पीछे भी मैं ऐसे ही दौड़ा था, और अब इसके सामने भी मैं ऐसे ही जाऊंगा। हालेलुया। जब उसकी तरफ बढ़ रहा है तो वो बोलता तू मुझे कुत्ता समझता जो लाठी लेकर तू मेरी तरफ। अब मुकाबला कैसा है जी? एक तरफ दुनिया का उस वक्त का सबसे खतरनाक योद्धा, और एक तरफ एक बच्चा। और हथियार क्या है? गले में एक पंजाबी कह रही है झोला पाया है, ते हाथ दे विच की है? लाठी है। ते की कह रहा नू? कहना तेनू माण होगा अपनी जवानी दे उत्ते, तेनू माण होगा अपनी ताकत दे उत्ते, तेनू माण होगा अपनी ढाल दे उत्ते, अपनी तलवार दे उत्ते। मैं दाऊद अपने परमेश्वर दे नाम दे उत्ते होना है।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਜੀ ਭਲਾ? ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਖਾਦਮ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਡਰ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਆਪ ਬੋਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਬਾਲਕ ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਲਕ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਟਾਂਗਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ 5 ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾ ਲਿਆ ਝੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਰਾਦਾ ਕੈਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ 5 ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ? 5। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। 5 ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਹੀ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਡਾਊਟ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੌਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ 5 ਚੁੱਕੇ ਸੀ। 5 ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਆ। 5 ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ 5 ਫਿਲਿਸਤੀ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਇਰਾਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ 5 ਦੇ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਆ। ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਚੁੱਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਗਲੇਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਜਿੱਤੋਂ 40 ਦਿਨ ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਉਹਦੀ ਹੀ ਤਲਵਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਚੁੱਕ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਾਂ ਚ ਕਰੀਏ।